नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि असम में इस बार अब विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिनों में संपन्न होने वाले हैं। डिब्रूगढ़ शहर की अगर हम बात करते हैं तो 116 नंबर विधानसभा क्षेत्र पर इस बार 27 तारीख को आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखा जा रहा है, जहां पर प्रशांत विधायक जो 3 बार जीत हासिल करने के बाद चौथी बार अपना नामांकन उन्होंने दिया है, उसी के साथ कांग्रेस के भी एक नए प्रत्याशी मैदान पर है और साथ ही साथ इस बार नवगठित नया संगठन असम जातीय परिषद भी इस बार चुनाव मैदान पर लड़ रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में बहुत सारे रोमांचक दृश्य हमें दिखने जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि यह सीट किसके हाथ में जाती है। हमारे साथ असम जातीय परिषद के डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अजीत बोरगोहाई, जो कि डिब्रूगढ़ के जाने माने चेहरे हैं, इस बार अपने नाम दाखिल करने के बाद अब प्रत्याशी के रूप में असम जातीय परिषद से ये एक उम्मीदवार है। आइए, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस बार आप एक नए प्रत्याशी के रूप में नई पार्टी के साथ पर लोगों के सामने आ रहे हैं। निश्चित है, कड़ा मुकाबला आपके सामने है। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि जो हम लोग जो जिस देश पाने के लिए हम लोग सपने देख रहे थे, वो पानी को हासिल करने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। और हम लोग के साथ जितना लोग हैं इधर में, जो हिंदी भाषी असमिया लोग, जैसे कि मारवाड़ी, जैसे कि बंगाली, जैसे कि थलुआ, खिलंजी, आसामीज़, सब मिलकर असमिया जाति गठित हुआ है। तो हम लोग सब मिलकर असमिया हुआ ना। तो हम लोग अभी उन लोग से इतना ये इंस्पायर हुआ हो कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ये कीजिए, हम लोग ऐसा जो चल रहा है अभी, वो असम हमको नहीं चाहिए, वो देश नहीं चाहिए, ऐसा एक बनाइए जैसे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर एक समृद्धिशाली असम, समृद्धिशाली इंडिया, भारत बनाने में सक्षम हो। सर, आप जैसे कि आपने कहा कि आप समृद्धिशाली असम और इंडिया की बनाने की बात कर रहे हैं, लोग आपसे जानना चाहेंगे आप किन किन मुद्दों पर আপোনাৰ ওচৰত কি ইস্যু আছে তাৰ কাৰণে যি আপুনি আগবাঢ়িব। মই এটা কথা কওঁ। প্ৰথম আমি এটা কথাত কৈছোঁ যে ইয়াত এতিয়া যিটো চলি আছে, যিটো বৰ্তমান চলি আছে, সেইটো হ'ল কি মানুহক প্ৰলোভিত কৰা, প্ৰলোভিত ৰাজনীতি। মানুহক কয় এটা যে আমি কৰিম, মানে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু তেওঁলোকে এটা প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। যিটো প্ৰলোভন দি আছে, মানুহক কিনিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু মই ক'ম যে সেইটো ৰাজনীতি হ'ব নালাগে। মানুহক তুমি অন্ততঃ যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো এটা চেষ্টা কৰা অন্ততঃ, কিন্তু মানুহক মানে প্ৰমঞ্চনা কৰিব নাপায়। মানে দে আৰ ডুইং চিটিং একচুৱেলি, ইট শুড নট বি কণ্টিনিউড। গতিকে কথা হ'ল কি, আমি সেইকাৰণে আমাৰ যিটো দল আছে, আমি কৈছোঁ যে ইয়াত আমি সকলোৱে মিলি এখন বৃহৎ অসমীয়া জাতি। মই আগতে কৈছোঁ যে এইটো ইয়াত থলুৱা অসমীয়াও আছে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আছে, জনজাতীয় অসমীয়া আছে, হিন্দীভাষী অসমীয়া আছে, চবেই আমি মিলি অসমখন হৈছোঁ। গতিকে আমি একেলগে বাস কৰিম, একেলগে থাকিম, আৰু গতিকে আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰ্ম ভিত্তিত, ভাষা ভিত্তিত বা সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ভাগ হ'ব নালাগে। আমি যদি এতিয়া দেখোঁ, আমাৰ বহুত কৰণীয় আছে, বহুত কৰিবলৈ কাম আছে। ইয়াততো সমস্যা মেইনলি চাওক, আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো মিউনিচিপালিটিৰ যিবিলাক কাম কৰি আছে, তাতো এটা ভাল কাম কৰিছে বুলি নাভাবোঁ বা সক্ষম হৈছে বুলি নাভাবোঁ। তাৰ কাৰণে ফেইলাৰ যে ডাইৰেক্ট ওলাই আছে কেলৈ, যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম দেখিব আপুনি, অলপ বৰষুণ দিলেই গোটেই ডিব্ৰুগড়খন ভৰি পৰে, অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, মানে মানুহৰ অৱস্থা। মানে এতিয়া ভালকৈ সেইকাৰণে সেইটো কি ভাল কৰিব নোৱাৰে নেকি? নিশ্চয় ভাল কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে এজন এক্সপাৰ্ট লাগিব, প্ৰকৃত বিশ্লেষক লাগিব, তেওঁলোকে ভালকৈ আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিব লাগিব, নিশ্চয় ভাল হ'ব। কিন্তু তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাক জীয়াই ৰাখিছে। জীয়াই থাকিলে হয় কি তেওঁলোকৰ কিছু সুবিধা হয়, আৰু সুবিধা কেনেকৈ হয় ৰাইজে চবেই গম পায়। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে যিটো সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ, যিখিনি মানে আপোনাৰ আন্তৰিকতা দৰকাৰ, সেই আন্তৰিকতাখিনি লগাব লাগিব আৰু সেইমতে কাম কৰি যাব লাগিব। এইটো কাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়, এইটো ৰাইজৰ সম্পত্তি। আৰু আমি ভাবিব লাগিব যে ৰাইজেই ৰজা, আৰু আমি সকলোৱে সংঘবদ্ধ হ'লে আমি প্ৰকৃত ডিব্ৰুগড়খন পাম, প্ৰকৃত অসমখন পাম, প্ৰকৃত ইণ্ডিয়াখন পাম।
যেনেকৈ আমি জানো যে এবাৰ আপোনাৰ অপনেণ্ট পাৰ্টি যি আছে আমাৰ প্ৰশান্ত ফুকন তেখেত এবাৰ 4th টাইম কনষ্টেণ্ট কৰি আছে নিশ্চয় এটা আপোনাৰ ওচৰত টপ কণ্টেষ্ট আছে কেলৈ যে কংগ্ৰেছৰো প্ৰাৰ্থী আছে বিজেপি আছে এতিয়া আপুনি নতুন আছে আপুনি নিজৰ অপনেণ্ট যি আছে আপোনাৰ যি অপজিট পাৰ্টি আছে আপুনি তেখেত কেনেকৈ চাই যে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম কথা হ'ল কি চাওক প্ৰথম কথা হ'ল কি বিজেপিৰ কথাই কৈছোঁ তেওঁলোকে 3টা টাৰ্ম ইয়াত তেওঁলোকে থাকিলে 15 বছৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু একো কাম কাজেই নহ'ল মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে যিবিলাক সমস্যা আছিলে সমস্যাবিলাক বাঢ়িলহে কমি যোৱা নাই কিন্তু গতিকে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে ৰাইজ এতিয়া আমি তেওঁলোকে যি ভোট দিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে আহি আমাক কৈছে যে আমাৰ কোনো কামেই হোৱা নাই এতিয়া চাৰিওফালে খালি মানে এটা কি বাকী আৰু ফাঁকিৰ চৰকাৰ চলি আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ কথাটো দেই গতিকে মোক আৰু ব্যক্তিগত কথাত মোৰ মানে কমেণ্ট দিবলৈ মই নিবিচাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি একোৱেই নাপালোঁ আমাক একো আমাক উন্নতি নকৰিলে কথা হ'ল কি এতিয়া এখন চৰকাৰ আছে বুলিও আমাৰ এটা সন্দেহ আছে এই বুলি কয় গতিকে মই ভাবোঁ সেইফালৰ পৰা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা পাম সঁহাৰি পাম আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ কথাটো আমি তেওঁলোকক আমি কিবা এটা এই বুলি নকওঁ যে তেওঁলোকে কোনো ফেক্টৰে নহয় এই বুলি নকওঁ মই নিশ্চয় তেওঁলোক ফেক্টৰ হয় যেতিয়া এখন যুদ্ধত আমি ভোটৰ যুদ্ধত লাগিছোঁ বা আমি তেতিয়া যুঁজিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰাইজে যি বিচাৰ কৰিব তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো ফেক্টৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ফেক্টৰ নহয় গোটেই পিছত ৰাইজেই বিচাৰ কৰিব যে কাক দিয়া উচিত আৰু এতিয়ালৈকে য'লৈকে গৈছোঁ আমি তাতে আমি উচিত সঁহাৰি পাইছোঁ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ যে আমাক এখন এটা চেঞ্জ লাগে আৰু লগতে আমাক প্ৰকৃত মানুহ লাগে যি কাম কৰিব পাৰিব एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि बीजेपी कह रही है 100+ और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रशांत फुकन से बात की तो वो कहते थे कि इस बार मैं 40,000 वोटों से इस बार विजयी हूँगा अगली बार लास्ट ईयर उन्होंने लगभग 28,000 वोटों से विजयी रहे थे निश्चय है कि इलेक्शन में जब आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो विजय की ओर आगे बढ़ रहे होंगे किस तरह से आप देखते हैं अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और आने वाले दिनों में क्या रहेगा आप लोगों का देखिए डिब्रूगढ़ के जितना बाशिंदा ये ज्ञानी गुणी लोग हैं और जानते हैं कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए तो लेकिन बात यह है कि जो पार्लियामेंट जो नीति अप्लाई की है उन लोगों ने जो खरीद कर भी वोट खरीदना चाहते हैं अगर हम लोग जो आम आदमी है ना आम आदमियों ने अगर ये हो गया मैंने कॉन्शियस हो गया कि हाँ ये नहीं देना चाहिए तो हम लोग जोर जीतेंगे लेकिन ये निर्भर करते हैं उन लोग को कैसे कन्विंस कराए और जैसे कि अगर वो अपने आप को अगर बेच देंगे तो दूसरा बात है लेकिन मेरा विश्वास है इस बार उन लोग को खरीद नहीं सकेंगे तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आम आदमी को ये हो गया मालूम हो गया कि हम लोग बेच नहीं अपने आप को नहीं बचेंगे विवेक को नहीं बचेंगे तो किसको वोट देना चाहिए हम लोग देंगे अगर ये सही से वो अप्लाई उसका माइंड उसका ज्ञान उसका विवेक अप्लाई करेंगे तो ज़रूर हम जीतेंगे जैसे कि इस जातीय संगठन का जो निर्माण हुआ था वो निश्चित है कि का के विरोध में हुआ था और एक तरफ जहाँ सरकार जो है वो का को लागू करने में लगी हुई है और एक तरफ जहाँ पर का के विरोध में पूरा जातीय संगठन आगे आ रहा है आने वाले दिनों में अगर हम लोग जीतते हैं अगर आप जीतते हैं तो किस तरह से ये जो कानून का ये जो निवारण है कि लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे देखिए इस सिलसिले में एक केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम लोग को पूरा विश्वास है हम लोग जीतेंगे क्योंकि जो का है ये भारतीय जो संविधान है उस संविधान का ये है इस वायलेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक चीज़ है जो हमका प्रियम्बल जो है ना प्रियम्बल जो हो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का उसमें लिखा हुआ है कि ये सेकुलर कंट्री है सेकुलर सोशलिस्ट और लेकिन बात सेकुलर का मतलब क्या हुआ धर्मनिरपेक्ष तो जो का ने क्या किया ये अप्लाई करके ये पास करके जो दो धर्मों के बीच एक डिफरेंस लाने के लिए वो लोग ये हो गया तो अगर ये डिफरेंस हो जाएगा तो जो सेकुलर जो है ना प्रियम्बल का जो सेकुलर है वो तो हो ही नहीं हुआ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म तो हम लोग का इंडिया का जो प्रियम्बल है वो
in no case it can be amended. It is no doubt that some parts of the Constitution may be amended, but so far preamble is concerned, in no case it can be extended. It can be amended. So we know well that it was a case which is called this. There was इस केस में सुप्रीम कोर्ट राय दिया केशवानंद भारती केस में. In no case the preamble of constitution may be should be amended. So ये इंटेक्ट होना चाहिए. ये भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए ये नहीं करना चाहिए. तो इसलिए ये जो कहा है जो हम लोग नहीं मानेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने they will pass their order in favor of the public at large. ये थे अजीत बोरगोहाई, जो कि चुनावी दौरे के बीच पे इन्होंने अपना समय निकाला और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो बातें कही हैं कि बहुत सारी बातें हैं, लोगों को सोचना पड़ेगा, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में किसको वोट देते हैं. अंत में हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से, RBTV के माध्यम से, आप अपनी जो कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि को वो विचारी वो अपनी मैं कम से নিজকে নেবেচিব, বিবেক বুদ্ধিৰে কাম কৰিব, আৰু আমিতো বহুত পাৰ কৰিলোঁ দিন, কিন্তু আমাৰ উঠি অহা যি প্ৰজন্ম আছে সিহঁতৰ কাৰণে সমাজখন ভাল কৰি যোৱাতে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে, যাতে আমি সকলোৱে মিলি এখন প্ৰকৃত অসম, প্ৰকৃত ডিব্ৰুগড়, প্ৰকৃত অসম, প্ৰকৃত ভাৰত বনাব পাৰোঁ. तो ये थे श्री अजीत बोरगोहाई, जो कि AGP के प्रत्याशी डिब्रूगढ़ से, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि प्रकृत अखम बनाने की जो बात करते हैं उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं.